Hi everyone. So in this lecture we are going to see the State Election Commission. In the last lecture we have done the Election Commission of India. Now we'll do that how the elections are done in the state. Not done. It is a I will study a constitutional body. The State Election Commission is an autonomous constitutional authority responsible for administering elections to their tier of governance. It is the local self-government होगी which includes the panchayati raj and the urban local bodies. Urban local bodies are nothing municipalities and PRIs are the panchayats at the village level. Now, so they are established under the 243K panchayats and 243ZA municipalities of Part 9 and 9A of the Constitution respectively. They are so-called constitutional bodies because they draw their power from the constitution itself. किसी एक्ट या किसी अदर अदर चीज़ के द्वारा नहीं आई हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर ड्रॉ करती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उन्हें बनाया है. इलेक्शन फॉर लोकल बॉडीज आर 1992 में कंडक्ट किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट्स. Now coming next, as decentralization of government reached the local levels and was granted a constitutional status under this very important amendments, the Panchayati Raj amendments and the urban local bodies, sorry, societies amendment. So म्यूनसिपैलिटी और द पंचायत्स ठीक है प्रोवाइड किया गया था यहाँ से. तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत के देयर इज अ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है. व्हाई वी नीड दैट. ठीक है. नाउ कमिंग टू नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैव बीन शोइंग अ lukewarm attitude. ठंडा एटीट्यूड मीन्स you can see their non-serious towards the development of self-governing local bodies. पंचायती राज पे वो ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रही थी, उनका उतना ध्यान था नहीं. Delay in elections to local bodies. So there has been widespread arbitrariness in superseding these institutions, and elections were not held in many states for years. तक elections नहीं होते थे. You can say Himachal Pradesh where elections to Shimla Municipal Corporation along with 15,000 were held in 1986 after a gap of 26 years. आफ्टर अ गैप ऑफ 26 ईयर इलेक्शंस हुए हैं तो देखो कितनी केयरलेस थी तब गवर्नमेंट उनकी. Now, similar other examples can be found and this is done. So Punjab Municipal Corporation elections 77 है ना, but these remained as undemocratic bodies for a long period. So second reason is why we need the state election commission demand of regular and fair elections to local bodies. So you have 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992 which carried the provision of establishing a EC election commission state election commission. फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाने के लिए एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए. दैट्स व्हाई. ठीक है. So now you have these articles that we have studied 243 K and the 243 ZA for the panchayats and municipalities and the panchayats. ठीक है. So it provides the superintendents direction, control and relation relating to conduct all the elections related. Coming next, we have these two related articles that from the ninth and 9th A. 243K. Elections to Panchayat to be conducted by State Election Commissioner and municipalities के भी State Election Commissioner देखेंगे commission देखेगा. So part 9th and part 9th है ना. Of course evolution of State Election Commission. तो State Election Commission को जो भी होते हैं उनको head किया जाता है by State Election Commissioner. However, in some states like Punjab, there is a provision for appointment of Deputy Election Commissioner to assist the State Election Commissioner. So बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा एक स्टेट का, लेकिन उसको कई स्टेट में ऐसा होगा कि वहाँ पे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकता है, उसके नीचे भी पोस्ट हो सकती है. इलेक्शन कमिश्नर
गवर्नर करेगा बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ही इज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द एज ऑफ 55 ईयर्स एंड ऑफ द रैंक ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर रैंक होना चाहिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो उस टाइम की, और 2 ईयर्स तक उनको सर्विस होनी चाहिए। He is a serving or retired judge of High Court as state election commissioner. Can be है this ना। डेप्यूटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उसको, ठीक है। देयर इज वन और मोर देन वन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर टू असिस्ट द स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे कि हमने सेंटर में देखा था। चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा, यानी कि वन और वन से ज़्यादा हो सकते हैं। अदर इलेक्शन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, सो ये एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे आपके पास। अब किसके लिए? सुपरिटेंडेंट करने के लिए उस चीज़ को, ताकि वो कि बिगड़े ना, डायरेक्शन देने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। सो ईच पंचायत और म्यूनसिपालिटी में ये होंगे, ठीक है। दे आर बेसिकली इलेक्ट्रल रूल्स बनाने के लिए। रिटर्निंग ऑफिसर अगर आप देखो तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से बनेंगे, एंड स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर होगा और लोकल अथॉरिटी का ऑफिसर होगा, वो रिटर्निंग ऑफिसर, जनरल डीएम साहब होते हैं। एंड वन और मोर असिस्टेंट रिटर्निंग, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स। Coming next, we have a polling stations and presiding officers. District electoral officer provides a sufficient number of polling stations. तो district electoral officer जो होगा, which provides a sufficient number of polling station for every constituency के लिए, जितने required हो सकते हैं polling stations उतने उनकी jurisdiction के अंदर of course। एंड लिस्ट भी होगी कि कहाँ कहाँ कितने कितने पोलिंग स्टेशन बने हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ बेसिकली अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, है ना, पोलिंग ऑफिसर बोल सकते हो। ओके, मूविंग नेक्स्ट, वी हैव कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अपॉइंटमेंट हमने देख ली, गवर्नर साहब करेंगे अपॉइंटमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब बात, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करें हम जब, ठीक है, चीफ सेंटर में बोल देते हैं ना, यहाँ हम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बोल देंगे, और डेप्यूटी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बोल सकते हो, जो नीचे वाले होंगे दोनों। Okay, now tenure you have this 243K clause 2. So it is decided by the governors of course, जो गवर्नर रिस्पेक्टिव स्टेट के होंगे। रिमूवल पे आएंगे तो रिमूवल इज आर्टिकल 243 के, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट लाइक अ मैनर, जैसे कि आप एक हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हो, सेम मैनर में आप हटा सकते हो। सो वी हैव स्टडीड दैट, यू कैन गो एंड स्टडी। फर्दर ऑफ अपॉइंटमेंट जो होंगी, टर्म्स ऑफ ऑफिस इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नर। जो भी टर्म ऑफ ऑफिस होगी वो स्टेट गवर्नर देखेगा। In case there is no law existing in the state determining the same, in most of the case, after retiring from office of chief election commissioner, the commissioner becomes ineligible for further appointment under the state government के अंदर। वो मतलब किसी लिए रहते नहीं है किसी पोस्ट के एलिजिबल। Functions, state election commission is just each state has been constituted to conduct free and fair election, जो हम देख चुके हैं। They draw the power authority from the articles, these articles। Coming to preparation of electoral rolls, तो पंचायत और म्यूनसिपालिटी इलेक्टोरल रोल होते हैं सभी के, ठीक है, चाहे वो पंचायत हो कोई, चाहे वो म्यूनसिपालिटी हो। सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो सुपरविजन के अंदर इलेक्टोरल रोल्स रेडी होते हैं, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब मैनर में, ठीक है, अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स, जो भी एक्ट में बने होंगे उसके अकॉर्डिंग्स होते हैं। कब होंगे ये? जनरल इलेक्शन से पहले, और बाई इलेक्शन जो होते हैं, ठीक है, टू कैजुअल वैकेंसीज उनको फिल करने से पहले। डिटरमाइनिंग द डेट्स ऑफ नॉमिनेशन, डेट्स बताना, नॉमिनेशन की लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट कब से है, स्क्रूटनाइज करना डेट को। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेचर, पोल कब होंगे और रिजल्ट कब आ सकता है, ठीक है। लास्ट डेट कब होगी इलेक्शन की, टेंटेटिव परमानेंट जो भी, मतलब पब्लिक नोटिस ऑफ इलेक्शन। ऑन
Issuance of a notification to the returning officer gives public notice of the intended election, inviting nominations of candidate for election. सो नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है स्टेट की तरफ से आर ओ साहब जो होते हैं दैट विल पब्लिक नोटिस में कर देते हैं कि साहब इस दिन सिलेक्शन होने वाले हैं, देन यू हैव टू नॉमिनेट, जिसको नॉमिनेट करना है वो आ जाए। ठीक है। एनी सिटीजन में बी नॉमिनेटेड एज ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू फिल अ सीट। तो क्वालिफाइड अगर है तो हम देख चुके हैं इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, पीरियड एक्सपायर होने के बाद तारो साहब जो होते हैं वो लिस्ट बनाते हैं जो भी कंटेस्टेंट होते हैं। ठीक है। वैलिड होंगे, नॉन वैलिड होंगे, जिन्होंने वापस लेना होगा वो भी, जिन्होंने नहीं लिया होगा वो भी। ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट होगी। ठीक है। दिस इज नॉट आवर टास्क। टाइम टू पोल, टाइम कब होगा, आवर्स कितने आवर्स तक पोल होगा। ठीक है। एडजर्नमेंट ऑफ पोल, कैसे किस केस में एडजर्नमेंट हो सकती है पोल की। ठीक है। या फिर कैप्चर कर लिया वोट किसी ने तो कैंसिल हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। काउंटिंग ऑफ वोट्स भी वही डिसाइड करेंगे। You have powers and responsibility to summon and enforce the attendance of any person and examine her him on oath. So किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं। ठीक है। उसको ओथ के समय बुला सकते हैं। उनकी बेसिकली ओथ के समय मतलब अटेंडेंस को आइडेंटिफाई करना कि ठीक है वो उस टाइम पर्सन वहाँ हो। रिक्वायर्स द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, उनको वैलिडेट करना कि वो ठीक है, वो एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। Requisitions of public hold record or a copy therefore from any court of office, ठीक है, easy. Evidence of affidavit, easy. Witness और document देखना है। Additional powers अगर आप देखो, so power to inquire of any person. So सिविल कोर्ट में अगर कोई ऑफेंस किया जाता है अगेंस्ट सेक्शन इन सेक्शंस के अंडर तो आपको फिर पेशी देनी पड़ेगी बेसिकली। कमिंग नेक्स्ट इज नॉट आवर टास्क। इम्पोर्टेंस देख लो, रेगुलेटरी रोल क्या है। इट्स पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द डेलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, इलेक्शन सिंबल्स, इलेक्टोरल रोल्स बनाना, इलेक्शन एक्सपेंसेस देखना, सिग्निफिकेंट टास्क करना। ठीक है। दैट इज अ रेगुलेटरी रोल। देखिए उसको रेगुलेट करना, सिंबल प्रोवाइड किया हमने, सिंबल प्रोवाइड करने वाले आज 1 महीने तक आप प्रचार कर सकते हो। ठीक है। रोल्स तैयार की, इलेक्टोरल रोल्स पहुंचाए वो इलेक्ट के कॉन्स्टिट्यूंसी में, expenses देखिए तो you are regulating a process, so that is a regulatory role. एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अगर आप देखोगे, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, लार्ज नंबर ऑफ प्रिपरेटरी टास्क होते हैं करने के लिए। ठीक है। अपने स्टाफ को लेके कुछ काम करवाना, मतलब बेसिकली डेली रूटीन जॉब बोल सकते हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। क्वासी जुडिशियल बोलेंगे हम। The SCC also to undertake some quasi-judicial functions during the election process. In fact, in any election process, some disputes are likely to be raised by one or more other party. The SCC are empowered to dispose of such elections. देखो बेसिकली डिस्पोज किए जा सकते हैं अगर अपील्स। देखो बेसिकली क्या है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स रेज की जाते हैं एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी पे कि इन्होंने ये कर लिया था इलेक्शन के समय, पोलिंग के समय, तो उनके पावर है कि वो कैंसिल कर दें। ठीक है। जुडिशियल पावर्स को यूज करते हुए अपनी क्वासी जुडिशियल बेसिकली। द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स हैव बीन बार्ड। तो दिस अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट हैज बीन बार्ड। और अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द एससीसी में बी मेड इन द कोर्ट, अपील कर सकते हो लेकिन जो इंटरफेरेंस है उस समय वो बार्ड है। अगर if there is an error or dispute in the jurisdiction or there is a violation of the constitutional provision, due to this common complaints of irregular elections are ठीक है now negligible, मतलब बेसिकली है नहीं होती बिकॉज इससे फेयर इलेक्शन होते हैं कि आती ही नहीं कंप्लेंट्स। कमिंग टू द चैलेंजेस, ऑटोनॉमी, कितनी प्रोविजंस हो जाएं इंडिपेंडेंट नहीं है पूरी तरह अभी भी। एग्जाम्पल 2008 The then state election commissioner जो थे of Maharashtra expressed his opinion that his office should have the power to hold elections for the office of the mayor
deputy mayor and sarpanch offices, but the state assembly got him arrested for the breach of privilege and sent him to jail for 2 days. क्योंकि इस बोलने में इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि उनका ऑफिस यानी चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है दैट आर आल्सो होल्ड द पावर कि पावर टू होल्ड इलेक्शंस कौन से इलेक्शन मेयर के, डेप्यूटी मेयर के और सरपंचेस के, तो उसके लिए उसको जेल कर दिया गया. Non-uniformity in the service condition of SCC. Since the Constitution vests the power to determine the service condition on state legislature, the service conditions are not uniform across the country. That is very very known to us. Lack of the constitutional safeguards. तो जो manner है removal का that is flouted by the state governments by alternative methods such as restricting the term and conditions. तो terms को restrict कर दिया 5 साल तो 5 साल. Okay, so we'll do that. Suggestions. Judicial directives को फॉलो किए जाए. Appoint an impartial non-political person as a state election commissioner. Increasing the autonomy of state election commission. Comply with the state election commission's rules. Law commission recommendation बोलती है central government can provide a separate independent permanent secretariat for the state election commission and election commission. ठीक है. ARC Administrative Reform Commission. So Law Commission, Administrative Reform Commission. Two of the commissions both are related to these constitutional bodies. फंक्शनिंग इम्प्रूव करने के लिए सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था हैज़ रिकमेंडेड अ फ्यू इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस. तो कॉलेजियम बना दिया जाए, एक सेपरेट कॉलेजियम जिसमें जैसे सेंटर में है ना कि प्राइम मिनिस्टर होगा, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे या फिर एक लोकसभा के स्पीकर साहब होंगे, वो डिसाइड करेंगे कौन बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एट द सेंट्रल लेवल. बट हेयर सेम इलेक्शन कमीशन के लिए था एक प्रावधान कि चीफ मिनिस्टर होंगे, स्पीकर साहब होंगे और अपोजिशन के लीडर होंगे. ठीक है. देयर इज एन एडवाइजर. ठीक है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन को टुगेदर लाया गया. दीज आर द रिकमेंडेशंस. किस हद तक फॉलो हुई है वी डोंट नो, बट ओके फाइन. This is the election commission, the state election commissioners. Now we'll move to next constitutional body itself. Thank you for now.